complexes. हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि how the metal carbons are bonding together, how the electrons are flowing from the carbonyl ligand towards the metal, and then the electrons are flowing from the metal towards the carbonyls. So the carbonyl is acting as sigma donor, whereas the metal is acting as pi donor. ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं generally organometallic compounds में that the ligand is pi sigma donor and the metal is pi acceptor. Sorry, the ligand is acting as sigma donor and pi acceptor at the same time, whereas the metal is acting as sigma acceptor and pi donor at the same time. Okay. Now, so we are proceeding toward the bridging carbonyls. In addition to the linear metal carbonyl, the carbon monoxide ligand is also known to form bridges. ठीक है, कार्बोनिल्स जो हैं ये सिर्फ आपके पास लीनियरली बॉन्डिंग नहीं करते, जहाँ हम कह देंगे सिर्फ लीनियरली बॉन्डिंग करते हैं कार्बोनिल्स, और मेटल और कार्बोनिल के दरमियान जो है वो लीनियरली बॉन्डिंग हो रही होगी, बट समटाइम्स द कार्बोनिल इज एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन bridging the two metals, more than two metals with each other. तो based upon the metal centers कि कितने metal centers जो हैं ये bridge करता है, तो उसकी basis पे हम फिर इनको mu 2, mu 3, mu 4 इस तरह हम classify करते हैं. ठीक है, so I don't know what is happening. This is now. So based upon the bridges, this type of bonding is observed in some binuclear and polynuclear carbonyls. ठीक है, मतलब ब्रिजिंग कार्बोनिल्स आपको ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगेंड्स जो हैं ये तब मिलेंगे जब बाइन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स को आप कंसिडर करते हैं. सो द ब्रिजिंग कार्बोनिल्स दे आर डिनोटेड बाय mu n CO, where n indicates the number of metals bridged. Okay, so if they are bridging two metals, so you will be writing n is equal to 2, so mu 2 CO, or if they are bridging three metals, so you will be writing 3 for them. ठीक है, so it reaches to be 3 or 4 in certain less common carbonyls. In our terminal metal carbonyl groups, the carbon monoxide donates 2 electrons to an empty metal orbital, while in mu2 carbonyl group, the MC bond is formed by sharing of one metal electron and one carbon electrons. टर्मिनल कार्बोनिल्स में आप देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बोनिल से मेटल की तरफ जाते हैं दे आर 2 इन नंबर, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो आपके पास बनता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बोनिल इज एक्टिंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है. लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस, अगर आप ब्रिजिंग कार्बोनिल को देखिए तो ब्रिजिंग कार्बोनिल में ये बात होती है कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बोनिल एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो तब जाके आपके पास ब्रिजिंग कार्बोनिल्स बनते हैं, ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल्स. और इसके अलावा आपके पास ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल में मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल से एक इलेक्ट्रॉन मेटल से आ रहा होता है. सो हेलो, जी स्क्रीन तो शेयर्ड है, मैं तो शेयर कर चुका हूँ. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुडे, बट द स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड. सर पता नहीं है, हम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, क्या होगा सर? स्क्रीन में शो की सर.
आई एम स्टॉपिंग इट अगेन। ये देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये स्क्रीन शेयर हो रही है, लेकिन आप लोगों का मसला क्या है, आई डोंट नो। आई एम अगेन शेयरिंग द सेम स्क्रीन बट दिस हैज बीन शेयर्ड ऑलरेडी। ठीक है, नाउ द apart from the metal metal to carbonyl bridging bond, there is a metal to metal bond as well. metal to metal bond भी फिर बनता है, ठीक है, उसमें bridging carbonyls में। So in some carbonyls, another bond develops between metal to metal due to weak overlap of the two singly filled appropriate hybrid orbitals. This bond is metal to metal bond जो है ये थोड़ा weak होता है, ठीक है। Also called fractional single bond and longer than normal single bond. Metal to metal bond जो होता है ये इसको हम fractional single bond कहते हैं, और ये जो है normal single bond से लंबा होता है। Now in bonding situation in nickel tetracarbonyl, जब आप उसको लेते हैं कि उसमें किस तरीके से bonding होती है, so you may see nickel is 3D4S2 4P0, ठीक है। निकल टेट्राकार्बोनल में निकल जो है ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है लूज नहीं हुए। सो 3D8 डी ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो यू मे सी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, एंड एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यू मे सी एस with 2 electrons, and P is completely empty, so P is empty over here. लेकिन जब ये बॉन्डिंग करता है तो हाइब्रिडाइज, ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी में आ जाते हैं, सो एस जो है ये भी खाली हो जाता है, एंड पी इज, हेलो जी जी कौन बोल रहा था? अच्छा, S is now empty and P is also empty, so you may see that the electrons from S they are promoted toward D। शेयर के साथ शेयर हुई है, अल्लाह के बंदे आपके पास इंटरनेट स्लो होगा, इंटरनेट स्लो होगा आपके पास। एक्सक्यूज मी सर, मुझे पता नहीं सर एक बार फिर दोबारा काम नहीं करता, पता नहीं क्या हो जाए। आपके पास स्क्रीन शेयर हुई है, मैं जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है, ठीक है। जो आपके पास मसला आ रहा है वो आपके अपने इंटरनेट की वजह से मसला आ रहा होगा, ये मेरी वजह से नहीं है ना। देयर आर स्टूडेंट्स हु कैन सी, आई कैन हियर देम, दे आर सेइंग दैट वी आर सीइंग दैट स्क्रीन। Yes, sir, we are seeing. जी, now the nickel tetracarbonyl, सर अगर दोबारा करना पड़े तो फिर ठीक होगा सर। सर स्क्रीन को दोबारा शेयर कर दे, पहले खत्म कर, दोबारा शेयर करे ताकि हमें भी नजर आए सर। किस किस को नज़र नहीं आ रही? सर हमें नजर नहीं आ रहा सर, मुझे सर स्क्रीन शेयर करें। अब ठीक होगा। You are seeing the screen, ठीक हो गया? यस सर, अब ठीक हो गया। अच्छा, so nickel tetracarbonyl में there is 3D8 4S2 4P0 electronic configuration, लेकिन कार्बोनिल की वजह से जब कार्बोनिल लिगेंड आता है, so these electrons, the S electrons, they are pushed toward d orbitals, and this is converted to 3D10 4S0 4P0. So you are seeing the d orbital is complete now, whereas the S and P orbitals they are empty.
तो अब कार्बोनिल जो हैं 4 लिगेंड्स हैं, सो दे आर डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करते हैं and producing the sp3 hybridized orbitals, and these orbitals they lead to the formation of the nickel tetracarbonate with sp3 hybridization. The structure is tetrahedral because the hybridization is sp3, so you are observing tetrahedral structure for nickel tetracarbonate with bond angle equal to 109.5 degrees. तो आपने देख रहे हैं ये स्क्रीन पे आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी. Similarly, bonding in Fe2CO9 where the bridging ligand is present. Now free Fe जो है ये आपके पास इसकी configuration 3d6 4s2 Excuse me, sir. Sir, mă understand audio just a second. Sir, जी please मग कोसम screen ना करे हो sir please notes दिया सिया तो send के sir जी मगे रुगु इसका sir मग वजह से खैर द क्लास वाली. आपके साथ वीडियो भी शेयर की जाएगी, आप क्लास को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़. बार बार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, पूरी स्टूडेंट को नज़र आ रही है, एक आपको नज़र नहीं आ रही. भाई वो हिंदू बटखेना ना उड़ानी है. नाउ दिस इज 3d6 4s2 4p0. तो आपके पास फ्री Fe जो है दिस इज 3d6 4s2 4p0 कॉन्फ़िगरेशन में है. You are attending calls in the lecture and you are saying that screen is not appearing on your phone. 3d6 4s2, so you are seeing this. So 3d6 4s2 4p0. Now what happens when the carbonyl comes? The 2 electrons from the s orbital they are pushed toward the d. So आपके पास 2 electrons जो हैं ये इधर आ जाते हैं, they are converted to 1 electron comes to the 3d and the other is also coming toward the 3d. The s orbital is this is half filled. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाता है. सो एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, बाकी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर रह गए हैं. अब इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोनिल से इसके एक एटम के साथ मिलके, मतलब आयरन सेंटर के साथ मिलके बॉन्डिंग बना देता है ब्रिजिंग कार्बोनिल के तौर पे. और दूसरे भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 कार्बोनिल इसमें ब्रिजिंग है. सो देयर आर 3 कार्बोनिल्स ब्रिजिंग द 2 आयरन सेंटर्स, whereas 1 electron is remaining still in d orbital which is taking part in metal to metal bond, Fe bond produce हो जाता है. Whereas the 3 carbonyl to each iron center they are bonded, they are pushing the electrons toward the empty p orbitals and producing the Fe2CO9 structure. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 कार्बन जो हैं वो ब्रिजिंग है, एक मेटल टू मेटल बॉन्ड है, और टोटल जो हैं 6 कार्बोनिल बॉन्डेड है टू द 2 आयरन स्ट्रिंग. कार्बोनिल 3 आर ब्रिजिंग 1 metal to metal bond, Fe bond produce होता है, and there are carbonyl ligands attached toward bonding toward the iron center. Now जो carbonyls हैं they are actually so generally carbonyls they are characterized by different spectroscopic techniques. One of the spectroscopic technique which is successfully used to characterize the carbonyls, this is IR spectroscopy. बहुत easily आप इसके थ्रू जो हैं इनको characterize कर सकते हैं. Like the CO vibrations जो हैं इनको हम देखते हैं कि CO vibrations किस region में fall होते हैं, and you can
easily assign that it is either bonded in bridging configuration or it is bonded terminally. ठीक है, और इसके अलावा आप और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन after this slide. The CO vibration, this is typically denoted by mu CO. जी Excuse me, sir. जी सर कुछ स्टूडेंट को मसला है सर, वो लॉगिन नहीं हो रहे सर, आप देख लेगा वो है आपके पास वेटिंग में। मैं उनको नहीं छोड़ रहा बिकॉज द टाइम हैज़ ऑलरेडी पास्ट. ठीक है, मैं उनको नहीं छोड़ रहा, फिक्र ना करें. Now the CO vibration, this is 21:43, almost 30 minutes have passed of the class, so आधा टाइम गुजर चुका है, नहीं छोड़ सकते इसको. The energies of the CO band for the metal carbonates correlates with the strength of the carbon-oxygen bond and inversely correlated with the strength of the pi-back bonding between the metal and the carbon. जो आप mu CO मतलब IR frequency of CO मालूम करते हैं, so this is actually what is this is showing, this is showing the strength of the carbon-oxygen bond. ठीक है, और इसके अलावा इससे फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन जब आप रिवील करते हैं तो इसके अलावा आप इसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर सकते हैं कि पाई बैक बॉन्डिंग किस तरीके से होती है. ठीक है, द पाई बेसिसिटी ऑफ द मेटल सेंटर डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज Ti to Fe. At the bottom of this section, the hexacarbonyls show decreasing pi back bonding as one increases max more positive the charge of the metal. पाई बैक बॉन्डिंग जो है ये डिक्रीज होती है एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल सेंटर इंक्रीजेस. वो तो ऑब्वियस है बिकॉज if you increase the charge on the metal center, so less electrons they are available to the metal atom which can be pushed toward the ligands. ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग तो तब होती है जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों, लेकिन जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हों तो इसका मतलब ये है कि बैक बॉन्डिंग कम होगी. से पाई बेसिक ligands increases pi electron density at the metal and improved back bonding reduces mu carbonyl. अब अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर दिस इज इंक्रीजिंग और बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो, ठीक है, सो द IR फ्रिक्वेंसी ऑफ CO दिस विल रिड्यूस. ठीक है, मतलब CO की फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्री कार्बोनिल जो है वो 2143 की वाइब्रेट होता है, लेकिन जब बॉन्डेड कार्बोनिल आप उसकी CO फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो ये फिर मेटल के ऊपर बेस करता है. अगर मेटल का चार्ज जो है वो ज़ीरो वैलेंट है तो CO की फ्रिक्वेंसी फिर भी थोड़ी कम हो जाएगी अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से, मतलब 2143 से कम हो जाएगी, 2000 की रेंज में आ जाएगी, क्योंकि ये बॉन्डेड है और बैक बॉन्डिंग भी थोड़ा थोड़ा है. लेकिन जब आपने मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया तो बैक बॉन्डिंग आपने कम कर दी, तो ये कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी जो है ये वापस फ्री की तरफ चली जाएगी, मतलब 2000 से ऊपर चली जाएगी, बल्कि शायद 2100 से भी ऊपर चली जाए. लेकिन अगर आप बैक बॉन्डिंग को ऐसा कर देते हैं कि मेटल सेंटर के ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर रिजाइड करता है, सो द बैक बॉन्डिंग दिस ऑपरेट्स ईजीली, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर मेटल के पास होता है, ये ईजीली पुश कर सकते हैं टुवर्ड द कार्बोनिल, सो द कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेस, ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और इतनी हद तक रिड्यूस हो जाती है दैट इट डिक्रीजेस अप टू द 1600 पर सेंटीमीटर. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस टेबल शोज लाइक FeCO6, ये आयरन का हेक्साकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो मतलब ये डाई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है. इसकी फ्रिक्वेंसी 2204 है. फ्री कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास 2143 की रेंज में है और ये 2204 है, तो इसका मतलब ये कि ये ऑलमोस्ट इसमें कार्बोनिल जो हैं वो फ्री कार्बोनिल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, बट दे आर बॉन्डेड टुवर्ड द मेटल सेंटर, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो गई है, बट दे आर वेरी नियर टू द फ्री कार्बोनिल. नाउ मानो
पॉजिटिव कम्प्लेक्स जो है MnCO होल 6, इसमें अगर आप कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी देखें, दिस इज 2143 की रेंज में आ रही है, 2143. So the 2143 number indicates that this frequency is almost equivalent to the free carbonyl frequency. तो इसका मतलब ये कि ये MnCO होल 6 1 पॉजिटिव जो है, इसमें जो कार्बोनिल्स हैं ये फ्री कार्बोनिल्स के तौर पे काम कर रहे हैं ऑलमोस्टली. इसमें बैक बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है. CrCO होल 6 को देखें तो इसमें ये मेटल जो है ये जीरो वैलेंट स्टेट में है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे थे, ज़ीरो की तरफ आ गए हैं. तो इसकी फ्रिक्वेंसी CO की फ्रिक्वेंसी जब आप देखते हैं तो ये 2090 की रेंज में है. तो इसका मतलब ये कि ये फ्री फ्रिक्वेंसी से कम हो गई है बहुत, लेकिन फिर भी फ्री कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी की रेंज में है. लेकिन अब अगर आप वनेडियम हेक्सा कार्बोनिल और उसके ऊपर -1 चार्ज है उसको देखें, मतलब मेटल के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज बढ़ा दी है, सो द फ्री कार्बोनिल frequency, the carbonyl frequency, this is 1860 in comparison to the free carbonyls which are vibrating at 2140. तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब बैक बॉन्डिंग फ्रॉम द मेटल टुवर्ड द कार्बोनिल occurs. तो उसमें ये होता है कि साइनर्जिज्म शुरू हो जाता है. तो पॉजिटिव कम्प्लेक्सेस में साइनर्जिज्म बैक बॉन्डिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप नेगेटिव की तरफ आते हैं तो नेगेटिव कम्प्लेक्सेस में साइनर्जिज्म का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब टाइटेनियम को देखें, टाइटेनियम हेक्सा कार्बोनिल 2- में द कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी इट इज़ डिक्रीज टू 1750, मतलब ये और भी कम हो गई है. इसका मतलब ये है कि जब आपने मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है और इंक्रीज कर दी है, सो द फ्रिक्वेंसी, द कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी, दिस इज डिक्रीजिंग, मतलब एनॉर्मस डिक्रीज आ रही है इसमें फ्रिक्वेंसी में. तो यू कैन इजीली असाइन द carbonyl frequency based upon their back bonding characteristics in the complexes. ठीक है. अब अगर वैसी जनरली आप अगर बात करते हैं तो इसमें एक और चीज़ भी आती है, IR फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये आपको एक रेगुलर पैटर्न शो करती हैं. The more symmetrical the structure, the fewer stretches are observed in the IR spectrum. Stretches of IRCO जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब ये सिमेट्रिक स्टिच भी हो सकता है, एसिमेट्रिक स्टिच भी हो सकता है, वाइब्रेटरी भी हो सकता है, रोटेटरी भी हो सकता है. तो अब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक स्टिचेस ये एटलीस्ट 2-3 बैंड्स आपके पास आते हैं. लेकिन जब आपके पास स्ट्रक्चर जो कार्बोनिल का बनता है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल हो, मतलब लाइक निकल टेट्रा कार्बोनिल है, तो इसमें सारे कार्बोनिल जो हैं वो इक्वल एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं. लाइक दिस वन, ये इसमें सारे कार्बोनिल्स जो हैं ये एक ही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं. तो इसमें आपके पास 1 या 2 बैंड्स आप नज़र आएंगे. लेकिन इसकी कंपैरिजन में अगर आप इसको देखें, इस कम्प्लेक्स में आपके पास एटलीस्ट 2 किस्म के कार्बोनिल्स हैं. एक तो ये कार्बोनिल्स है जो टर्मिनली अटैच्ड है, और एक ये कार्बोनिल्स हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे काम कर रहे हैं. तो इसमें आपके पास अगर इनके 2 आते हैं तो इनकी भी 2-2, 3-3 इस तरह बैंड्स आएंगे. तो इसमें आपके पास जितनी स्ट्रक्चर में सिमेट्री कम होती जाती है उतनी आपके पास IR स्टिचेस की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है. FCO ligands are cis to each other. Both the symmetric stretch and asymmetric stretch will involve a change in dipole moment, and hence 2 peaks will be observed in IR spectra. Like for example these ones. तो इसमें ये दोनों जो हैं ये सिस, मतलब एक ही साइड पे लोकेटेड है. तो इसके सिमेट्रिक स्टिच का एक बैंड होगा, ये सिमेट्रिक हैं कि दोनों जो हैं एक साथ में एलोंगेट होते हैं. और एसिमेट्रिक स्टिच में एक साइड पे एक जो है ये डिक्रीज होता है तो दूसरा जो है वो इंक्रीज होता है. सो दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक स्टिच. तो एसिमेट्रिक स्टिच और सिमेट्रिक स्टिच के 2 पीक्स आपके पास आएंगे IR में. If there is a center of symmetry with CO ligands trans to each other. सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि
लिगेंड जो है एक ख़ास पॉइंट पे एक दूसरे के साथ पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्क्वायर प्लानर, किताब को देख लें तो किताब का एक कोना और दूसरे कोने पे अपोजिट टू ईच अदर अगर आप लिगेंड्स रख दें तो बीच सेंटर से ये लिगेंड्स पास होकर एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अब CO जो है एक दूसरे के ट्रांस लाई कर रहे हैं, ट्रांस स्ट्रक्चर तो समझ रहे होते हैं ना। स्क्वायर प्लानर में ट्रांस का मतलब होता है कि ये अपोजिट साइड पे लोकेटेड है। सो द ट्रांस लिगेंड्स in a geometry, a symmetrical stretch would not involve a change in dipole moment. जब आप सिमेट्रिक स्ट्रेच उसके लिए देखते हैं कि एक ही टाइम पे दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये इलोंगेट होते हैं और दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये शॉर्टन होते हैं, तो इसको हम सिमेट्रिक स्ट्रेच कहते हैं। इसमें आपके पास डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता। सो दिस इज IR इनएक्टिव, ये बैंड आपको IR में नहीं आएगा, ठीक है। The asymmetric stretch will be seen in the IR spectrum only because कि उसमें dipole moment में change नज़र आता है। As a result, transcarbonyls give one peak in the IR spectrum. तो transcarbonyls में आपके पास सिर्फ एक peak नज़र आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांस जो है ये ज़्यादा सिमेट्रिक है और सिस जो है ये कम सिमेट्रिक है, लेकिन इसका मतलब ये कि उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं है, एक में एक स्ट्रक्चर में और एक स्ट्रक्चर में डाइपोल मोमेंट चेंज आता है। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर प्लीज रिपीट। किस चीज को रिपीट करूं? IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम ऐसे होता है कि आप कार्बोनेल्स को जब भी आप उसको करेक्टराइज करते हैं तो इसके तो डिफरेंट करेक्टराइजेशन टेक्निक्स हैं, बट द बेसिक प्रॉब्लम इन carbonyl exists that the carbonyls are either they are in their liquid states or they are in gaseous state, ठीक है। ये तो या लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैशियस स्टेट में होते हैं। तो लिक्विड और गैशियस स्टेट के लिए आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नहीं कर सकते। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब आप नहीं कर सकते तो आप अदर टेक्निक्स ऑफ द करेक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। NMR भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उसको तब यूज़ करेंगे जब आपके पास मेटल सेंटर डायमैग्नेटिक हो, तो उसका स्पिन जो है वो NMR की जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो आपके पास बैंड्स आ जाएंगे। लेकिन इसका जो ईजीएस्ट टेक्निक है कार्बोनेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके थ्रू हम इसके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कार्बोनेल्स किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। कार्बोनेल्स का आपने पढ़ा होगा, मैडम ने आपको पढ़ाया भी है। कार्बोनेल जो है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड जो है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है, ये कभी डबल और कभी ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में होता है। तो इसलिए हम इसमें दो बॉन्ड जो है ये सॉलिड बनाते हैं और एक बॉन्ड जो है ये डॉटेड बनाते हैं। तो इसमें जब ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो ये एक तरफ से मेटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग कर देता है और वो बना देता है, मतलब स्ट्रक्चर बना देता है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये जब मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे होते हैं द कार्बोनेल्स, तो अब हमने इसको मेटल के साथ बॉन्डिंग को आइडेंटिफाई करना है, वेदर दिस बॉन्डिंग इज़ इन द टर्मिनल स्टेट, और अगर टर्मिनल में है तो वो किस तरीके से है कि आया ये बॉन्डिंग जो है CO या तो ये CO जो है ये बॉन्ड है या ये ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तब होगा जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, CO डबल बॉन्ड करेक्टर में होगा। जब बैक बॉन्डिंग कम होगी तो CO, हम ये एग्जाम्पल पढ़े थे FeCO6 2 पॉजिटिव, तो इसमें ये बात थी कि मेटल के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए, तो जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सिरे से, तो ये कार्बोनेल की तरफ क्या पुश करेगा। तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ये फ्री कार्बोनेल्स की जैसी ही आ रही है।
तो फ्री कार्बोनिल में आपने देखा था कि फ्री कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी उसी तरीके से वाइब्रेशन शो कर रहा है। सिमिलरली जो मैंगनीज हेक्सा कार्बोनिल था उसमें आपके पास उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज था, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ऑलमोस्टली सिमिलर है टू द फ्री कार्बोनिल्स, बिकॉज इसमें जो कार्बोनिल एग्जिस्ट कर रहे हैं और फ्री कार्बोनिल्स जो हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो इसमें बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है सिरे से। डोंट टर्न ऑन योर माइक, आई एम टर्निंग ऑफ एंड यू आर टर्निंग इट ऑन अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नाउ तो डोंट टर्न इट ऑन, बहुत शोर कर रहा होता है। सिमिलरली क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल जो है, दिस इज द अनदर कम्प्लेक्स, इसमें थोड़ी बहुत बैक बॉन्डिंग होती है, तो वो जो बैक बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज कार्बोनिल जो है इसमें कभी डबल बॉन्ड की उसमें शक्ल में और कभी ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जब आपने कार्बोनिल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया है, सो दिस फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस ट्रेमेंडसली, बिकॉज मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये बैक बॉन्डिंग में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, तो जब ज़्यादा हिस्सा लेते हैं कार्बोनिल का जो CO बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड की तरफ चला जाता है, तो इससे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम हो जाती है। सिमिलरली आपने जब ये कैरेक्टर ज़्यादा कर दिए, मतलब और भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल के ऊपर ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, सो यू आर ऑब्जर्विंग द कार्बन फ्रिक्वेंसी एट अ वेरी लोअर IR रीजन। ठीक है, तो फिर हम बात कर रहे थे कि IR फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये सिर्फ मतलब मेटल के ऊपर चार्जेस की बात नहीं करते हैं, बल्कि इसका जो नंबर है, दिस इज़ आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल्स। अगर आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे बहुत कम बैंड्स, मतलब 1-2 बैंड्स ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं लीनियर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं ना कि इनमें कोई शक नहीं होता, ये बिल्कुल सही तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। जब आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, टेट्राहेड्रल है तो वो भी सही है, ट्राइगोनल प्लेनर है वो भी ठीक है। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं तो इनको हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इनमें आप बहुत कम बैंड्स ऑब्जर्व करेंगे IR के। क्यों क्यों ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब लिगेंड सिस पे लाई करते हैं तो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक स्ट्रेच के 2 बैंड्स आपको नजर आएंगे IR रीजन में। और अगर लिगेंड्स ट्रांस लाई कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, सो यू विल ऑब्जर्व ओनली वन बैंड, द अदर बैंड इज IR इनएक्टिव। IR को हम कहते हैं कि IR बैंड्स आर ओनली ऑब्जर्व व्हेन द डाइपोल मोमेंट चेंज इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डाइपोल मोमेंट चेंज जो है किसी मॉलिक्यूल के लिए ज़ीरो ना हो, तब IR एक्टिव बैंड्स नज़र आएंगे आपको। लेकिन जब डाइपोल मोमेंट चेंज 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि द IR बैंड विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो इसमें जो सिमेट्रिक स्टिच है उसमें डाइपोल मोमेंट का चेंज जो है दैट इज इक्वल टू 0, सो वो IR इनएक्टिव बैंड होगा। वेयर इज द एसिमेट्रिक स्टिच, जिसमें एक बॉन्ड एक्सटेंड होता है दूसरा बॉन्ड डिक्रीज होता है इन द बॉन्ड लेंथ, सो यू आर ऑब्जर्विंग दिस बैंड एज एसिमेट्रिक स्टिच। तो सिस के लिए 2 बैंड्स होंगे, ट्रांस के लिए 1 बैंड होगा। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में कार्बोनिल्स एक दूसरे के सिस लाई कर रहे हैं या ट्रांस लाई कर रहे हैं। समझ आ गई अब?